अगर आप नेहरू को एनालाइज करें तो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस वाज कि इंडिपेंडेंस के बाद, जिसको हम नेशनल रेवोल्यूशन कहते हैं हमारे, एक नेहरूवियन कंसेंसस बना फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट. फ्रॉम द टाटा बिरला प्लान ऑफ द 1945 दे वेंट विद हिम and eventually the communists, the entire spectrum went with him, and we had a peaceful transition after our revolution, first time in the world. ये unique imagination of India था, inclusive, celebrating diversity. This is the second unique thing, that you made the transition to modernity, to democracy, without violence. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वायलेंस होता है जबरदस्त, रशियन रेवोल्यूशन के बाद सिविल वॉर होता है, चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद सिविल वॉर नहीं होता बट मैसिव रिप्रेशन, मिलियंस आर किल्ड. इंडियन रेवोल्यूशन के बाद एक आदमी भी नहीं मरता है. दैट्स बिकॉज ऑफ नेहरू, बिकॉज ही डजंट पुश द पेस, ही डजंट पुश इट बियॉन्ड व्हाट द डेमोक्रेटिक अर्जेस ऑफ द पीपल आर. तो उनका रिग्रेट ये था कि हिज चीफ एलाइज डिजर्टेड हिम एंड देन ही वाज फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन द ब्यूरोक्रेसी. And at one stage, I cannot get to the exact quotation where he says it, but he's reported to have said that one of my biggest regrets is that I had to rely on the bureaucracy. Because as we know globally, wherever the bureaucracy comes into its own, then the bureaucracy feeds itself, and acquires autocratic powers. Whether it is a Soviet Union, socialist bureaucracy or non-socialist bureaucracy, natija wahi hota hai. So these are 2 or 3 of the main regrets he would have had. Absence of a continuity of a secular tradition, the social democratic tradition getting broken, and the move towards what we would describe as a semi-fascist state. India was an example in the world. और कहीं नहीं हुआ ये. बाय द वे, अगर आप पोस्ट कॉलोनियल किसी भी देश को ले लो, उन्होंने नेहरूवियन मॉडल फॉलो करने की कोशिश करी और थोड़े दिनों के अंदर या मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई या किसी और किस्म का. दिस वाज द ओनली केस that it did not happen. So it was a unique achievement. No country has made the transition to industrialism with democracy. No country. When Britain industrialized, democracy का तो नाम मतलब सुनने में भी नहीं आ रहा था. Dickensian condition of the working class rights, कोई चक्कर ही कुछ नहीं था. American rise to capitalism is based on slavery. So where is the question of democracy? Yeah. Every European country which industrialized did their initial capital accumulation on the basis of which you do industrialization, on the basis of what they collected from the colonies. और ये छोटी मोटी बात नहीं, मैं आपको एक फिगर देता हूँ. 1801 जब ब्रिटेन सबसे नंबर 1 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री था वर्ल्ड में, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उस वक्त जो वो इन्वेस्ट करता था टू बी द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, 85% ऑफ व्हाट दे इन्वेस्टेड केम फ्रॉम द कॉलोनीज. तो या तो आप अपने वर्किंग क्लास या पेजेंट्री से कैपिटल अक्यूमुलेट करके इंडस्ट्रियलाइज करते हो, और या दूसरे पीपल के कैपिटल को लेके आप इंडस्ट्रियलाइज करते हो. जब जवाहरलाल नेहरू इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, ही कांट से कि चलो मैं 2-3 आसपास के छोटे मोटे देशों को तो कॉलोनाइज कर लेता हूँ, है ना, नेपाल ये वो है. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉलोनाइजिंग समबडी एल्स, एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेजिंग इट फ्रॉम योर वर्कर्स एंड peasants. If you look at the figures of trade union movement from 47 onwards, you will find the working class rights are increasing. And if you look at the peasantry, there is a net transfer of income to the peasantry from 47 onwards till the end of the Nehruvian period. Extraction of surplus नहीं था. Colonial period में करीब 50% of the gross produce of the peasantry was taken away. जो peasant का total produce था उसका 50% या state ले लेता था या landlord या money lender. 50% सिर्फ उसके पास बचता था. आज़ादी के बाद उल्टा, 50 पैसा भी नहीं, कोई नो लैंड टैक्स, नथिंग. नेहरू कहते हैं कि दिस इज आई एम चूजिंग अ पाथ अनचार्टेड इन हिस्ट्री विच इज अ फैक्ट, एंड ही वाज एबल टू मेक दैट ट्रांजिशन, ह्यूज ट्रांजिशन. अब जब लोग आजकल, जैसे अभी पन्नागरैया साहब की किताब आई है, आपने देखा होगा. पन्नागरैया was the advisor to Mr. Modi also, and Columbia में प्रोफेसर हैं. जगदीश भगवती who is a very well known professor, उनके स्टूडेंट थे. उनकी अभी किताब आई है, बेसिकली रबिशिंग नेहरू है कि ये नेहरूवियन पीरियड नहीं होता तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं. दिस इज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग दीज डेज. खास करके जो न्यू लिबरल्स हैं ना, जो अभी आपके IT सेक्टर में खूब पैसे वैसे बनाते हैं, दे वेरी वेल टू डू, वो कहते हैं यार ये देखो 91 के बाद क्या ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है. वो नेहरू के टाइम पे क्या वो एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3-4% पे फंसे हुए थे. अगर वो सब उस वक्त पब्लिक सेक्टर ये सब नहीं करते तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं. ना दिस इज अ कंप्लीट ए हिस्टोरिकल एनालिसिस. एक तो अनट्रू, ऊपर से ए हिस्टोरिकल. क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑफ इनिशियल कंडीशंस, कि जब आप किसी को 2 बंदे को रेस पे लगाते हो
और एक बंदे को आप 100 मीटर की रेस है, एक बंदे को आप 30 मीटर पीछे खड़ा कर देते हो, तो फिर तो इनिशियल कंडीशंस उनके अलग अलग हो गए कि नहीं. सो वेयर डज नेहरू स्टार्ट फ्रॉम? यू कांट कंपेयर India in the 1950s with Japan in the 1950s. You have to compare India in the 1950s with Japan in the 1870s when they are making that transition. है ना? तो एक तो ये. दूसरा आपकी उस वक्त कंडीशन क्या थे? ये जब नेहरू शुरू करते हैं आज़ादी के बाद, हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता है क्या थी? 30 साल से भी कम. In India, average 1950. That's right. ऑन एन एवरेज. इसका मतलब जो पुअर है, वेल टू डू तो मोटा छोटा खाता पीता फिर भी जीता होएगा. ऑन एन एवरेज लोग किस उम्र में मर जाते थे? आपको तो मालूम है षष्ठी पूर्ति मनाई जाती है लोगों की भी 60 साल हो गए कि इतनी बड़ी बात हो गई है ना. मतलब इट वाज अनकंसीव्ड ऑफ थिंग काइंड ऑफ थिंग. सो यू स्टार्ट विद दैट. 92% ऑफ women were illiterate in 1950. 84% on an average. You had a famine in one part of the country or the other almost every year. 3 million people died. 30 लाख लोग आज़ादी के 4 साल पहले फैमिन में मारे जाते हैं. द ग्रेट बंगाल फैमिन. प्लस यू इनहेरिट अ कंट्री विच इज डीपली डिवाइडेड, विच हैज जस्ट फॉट अ वर्चुअल सिविल वॉर, जिसमें कम से कम 60 लाख लोग तो रिफ्यूजी बनते हैं. लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेथ्स अकर एट दैट टाइम, राइट? इट इज फ्रॉम देयर दैट यू हैव टू लिफ्ट दैट सोसाइटी. और अगर आप उसको देखें तो you find an amazing result. For example, in the Nehruvian period, agriculture grows 8 times faster than the previous 40 years. 8 गुना तेजी से बढ़ता है. ये कहते हैं ना, नेहरू ने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया, इंडस्ट्री कर दी पर उन्होंने एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया. इट्स अ कंप्लीट लाई. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट डैनियल थॉर्नर, जो कि सारे बच्चे पढ़ते हैं, अमंग इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों को डैनियल थॉर्नर पढ़ना ही पड़ता है. तो उन्होंने कहा कि इट इज़ ऑफन सेड दैट the first 3 plans ignored agriculture, 64 तक 65 तक. He said it cannot be maintained. Said more change happened in the first 20 years of after independence than happened in the previous 200 years. आपके लैंड रिफॉर्म्स हो जाते हैं. 150 साल पुराना जमींदारी सेटलमेंट, सारा जमींदारी जागीरदारी, उसका बैकबोन इज ब्रोकन बाय 1957. Then Nehru had to bring in a constitutional amendment to ensure it happened with democracy. Not like the way it happened in Japan with General MacArthur's army, or the way it happened in Soviet Union with forced collectivization. कि जो किसान आपके साथ नहीं उनके उड़ाई दो. Kulaks can be murdered by the millions, right? So it was a great achievement. Agriculture में growth होती है. He creates the conditions for the Green Revolution. In fact, again, agrarian experts say that the Green Revolution process had already started in the Nehruvian period. The selective districts, IADP जो कहते हैं, जहाँ पे intensively you are going to be making this attempt at the transition in agriculture. Industry grows at about 7% per annum from a situation of deindustrialization under colonialism. You are having at 7%. But more important than that, in the Nehruvian period, you achieve the following. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हमको आज़ादी मिली तो नेहरू कहते हैं कि आपको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल गई, पर आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस 0 पे है, जिसको टेक्निकली इट्स कॉल्ड अ नियो कॉलोनियल सिचुएशन, कि जिससे आपको आज़ादी मिल गई पॉलिटिकल, आप उसी पे डिपेंडेंट हो अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए. क्यों? अगर आपने आज़ादी के बाद कुछ भी इन्वेस्ट करना है, ग्रो करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको मशीन चाहिए. यू डिड नॉट मेक एनी मशीन्स. ओवर 90% ऑफ इवन योर मशीन टूल्स लाइक ड्रायर्स एंड रेंचेस वर इम्पोर्टेड. तो 1945 से हमारी देश में से इंडस्ट्रियल डेलीगेशन घूम रही थी यूरोप में कि आज़ादी के बाद हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, कहाँ से हमको मशीनें मिलेंगी. ये सिचुएशन थी. तो नेहरू ने कहा ये तो अनटेनेबल है, दिस विल नॉट गिव अस सॉवरेंटी. पॉलिटिकल आज़ादी ठीक है, सॉवरेंटी नहीं है. इसीलिए नेहरू महालनोबिस प्लान जो कहते हैं, हेवी इंडस्ट्री बेस्ड, सारे आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत अर्थ मूवर्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जस्ट नेम इट, नवरत्न जिसको कहते हैं, सारे उस वक्त एस्टैब्लिश होते हैं. और नतीजा 47 में आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए 100% करीब इंपोर्ट करना पड़ता था. बाय 1960s इट बिकेम 43%. And by 1970s, it became 9%. 91% अब अपनी ग्रोथ अपने बल पे कर सकते थे. This was the basis of our independent foreign policy. This was his great achievement. इसको लोग समझते नहीं हैं.